So guys, starting with your lecture, viral encephalitis and HCV encephalitis. बस क्यों सुबह सुबह मेरी भी मेहनत कराते हो और अपनी भी? आओ बेटा जल्दी आओ. So you can get questions like write a diagram. What is encephalitis and what is encephalopathy, and list the causes of them, enumerate any one of them, or you can get a note on write a lab diagnosis of encephalitis. Fine, or you can get a note on the post-exposure and pre-exposure prophylaxis of rabies. Fine, and herpes simplex is a viva type question. Fine, so I'm starting with the topic. First is encephalitis. Encephalitis का क्या मतलब है? Itis means inflammation. Encephalitis is your brain inflammation. So, any acute inflammation of the brain parenchyma caused by any infectious agent, most often it is caused by viruses, rarely by any other parasitic and non-parasitic causes. So, encephalopathy, is it any diffuse disease of the brain that alters the brain function or structure? So, that was only inflammation and that is changing the whole structure of your brain. It refers to non-infective causes. So, what are the clinical manifestation of encephalitis? तीनों को बाहर भेजो, समझ में नहीं आती बात. So, brain is involved, तो क्या होगा? brain का रोल क्या है बॉडी में? मैम बंद कर दो टैब, बुक में सब कुछ दिया हुआ है. जस्ट लिसन टू मी, डोंट ओपन योर बुक्स एंड टैब. हाँ जी बताइए, ब्रेन क्या काम करते हैं मैडम? उठो, आपको ही पूछ रही हूँ. हाँ जी पढ़ लिया होगा, अब बताओ ब्रेन का काम क्या है? कौन सा बॉडी फंक्शन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पीवीएस. और ब्रेन का मेन काम क्या है? आपके कोई जोर से थप्पड़ मारे, कौन बताएगा? So your consciousness is under the control of your brain. So whenever there is alteration in the consciousness or there is a depressed level of rest, you whatever you said are all right, but the main function is the consciousness. So no guys, time's up. Altered level of consciousness or a depressed level of consciousness ranging from mild lethargy to coma. मतलब पेशेंट की अगर encephalitis होगा तो how the patient may present, he or she will be in an altered state, GCS score will be very bad and the patient is not even able to recognize you. Fine. So other causes, the patient may ultimately land into coma. Next most common presentation is seizures. They may be focal or generalized. And then is neuropsychiatric manifestations. That's all again of the brain, that is hallucination, agitation, personality change, behavior disorders or any psychotic disorder. So what are the focal or diffuse neurological signs? उसमें क्या होगा? खाना पीना सब गया, aphasia, ataxia, lower motor functions are altered, involuntary movements, that myoclonic jerks are altered, cranial nerve function is affected, and even the signs of meningitis. Meningitis कब बोलते हैं हम पेशेंट को? Neck rigidity with the signs of neck rigidity. क्या होता है? Kernighan and Budzinski sign. अगर वो दोनों पॉजिटिव है then it is cause of a meningitis, and if with meningitis it is altering your CNS functions, then it is encephalitis. Fine. So there is a dysregulation in the temperature, diabetes insipidus. Now what are the causes, or we can say what is the viral cause of the acute encephalitis? These are herpes simplex. कौन सा 1 and 2? Then is cytomegalovirus, herpes simplex 6, varicella zoster virus, Epstein-Barr virus. और कौन से वायरस आएंगे? आर्बो, जापानीज encephalitis, वेस्ट नाइल फीवर, रेबीज वायरस, निपा, हेंड्रा एंड रेयर वायरसेस. एंसेफेलोपैथी के कॉजेज क्या होंगे? स्लो वायरल डिजीजेस, दैट इज प्रायोन्स, measles encephalitis, rubella encephalitis and Bond virus disease. So how we diagnose these of encephalitis case? CSF analysis. CSF analysis मतलब CSF का सैंपल आएगा आपके पास. You look for a CSF cytology, you look for biochemistry and you look for the microbiological findings. So उसमें क्या क्या देखते हैं? प्रोटीन, शुगर. प्रोटीन रेज होता है यूजुअली वायरल encephalitis या meningitis में. Sugar level is low. And even your third one is your protein, sugars, they are altered, and sodium chloride and your electrolytes are also altered. Fine. So how we treat the viral encephalitis? First of all, virus का treatment कुछ है नहीं. Sorry to say,
कुछ ही है viruses that we can treat, otherwise we are going to manage symptomatically like you have done in the coronavirus. Fine. पेशेंट बीमार हो रहा था, पीसीएम देके बुखार ठीक कर रहे हैं, एंटीबायोटिक देके वो कवर कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली ट्रीटमेंट वाज वैक्सीन. फाइन. So likewise, most of the viral disorders have symptomatic management, and most common drug is used for herpes simplex. It is acyclovir, and for CMV it is ganciclovir, foscarnet, and cidofovir. So first of all is your herpes simplex virus, HSV. It is the most common cause of acute sporadic viral encephalitis. What does that mean? Acute मतलब एकदम से, sporadic मतलब in particular area, and then it is viral encephalitis. It is most commonly involving the temporal lobe. Herpes simplex 1 and 2 दोनों होते हैं. One का most common, one is one of the most common causes of encephalitis. Children generally get infection and acquire exogenously, and then it invades through CNS via olfactory bulb, and जो adults है उसमें reactivation होएगी. Fine. Reactivation का क्या मतलब? पहले कभी herpes की infection हुई हो, fine, तो वो वायरस अंदर बॉडी में रह जाएगा, दोबारा इम्यून सिस्टम किसी भी कारण XYZ, whether it is tuberculosis or whether it is malnourishment of any other cause, whenever the immunity goes down, then there are chances of getting herpes simplex virus again. Fine. Lab diagnosis is the detection of viral DNA in the CSF, and treatment is acyclovir. Now main topic is your rabies. Rabies का नाम सुना है? कौन करता है rabies? Dog bite, most common. घर पे डॉगी रखे हैं तो उनकी वैक्सीनेशन पूरी रखना. अगर बाहर भी आपको डॉगी मिलते हैं तो डॉगी अगर एजिटेटेड स्टेट में है तो बेटर टू बी अवे फ्रॉम दैट डॉग. फाइन. जाके उसको खाना नहीं खिलाने लग जाना, फिर उसके बाद नहीं तो खुद 14 टीके खाओगे. फाइन. रेबीज वायरस कॉजेज अ रैपिडली प्रोग्रेसिव acute infectious disease of CNS in humans and animals, and it is almost fatal. मॉर्फोलॉजी क्या है? जब आपको लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरसेस मैंने ही करवाया था, तो आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द वायरसेस. कोई स्टार शेप्ड है, कोई स्पिरिट शेप है, कोई स्पेस वेहिकल शेप्ड है, एंड द रेबीज वायरस इज बुलेट शेप्ड. फाइन. सो इट इज एनवेल्प वायरस विद a lipid envelop and hemagglutinin papillomere spikes over it, and envelop is lined internally by a matrix of protein. That is the structure. So ये क्या है? बुलेट की तरह है. Lipid bilayer is outside, and outside is a G protein which help to bind with the particular organism. And M protein is present inside. It has a single-stranded RNA with a nucleic acid. So envelop virus, they have a lipid envelope in which 10 nm long papillomeres or spikes are there. Nucleic acid is helical structure, and antigen, that is glycoprotein G, and nucleic acid is present. They play a major role in the rabies. So इसके दो प्रोटीन्स है, दोनों का फर्क क्या है? So first of all is your glycoprotein G. They are papillomeres. They are species specific. They play a role in the pathogenesis, and they even play a role in the antibody detection, immunity, and vaccination. While nucleoprotein, it has a capsid proteins. They are group specific. They don't play any role in the pathogenesis, and antigen detection is using nucleoprotein, and no antibodies are protective and not required for vaccination. So there are two types of strains of the rabies virus: street virus and fixed virus. Street virus, these are freshly isolated strains in the lab. They mimic the wild viruses. They show long variable incubation period. अब बताओ, किसी का long variable incubation period है तो वैक्सीनेशन में यूज करोगे? Next is your fixed viruses. When the street viruses are propagated in rabbits by serial brain-to-brain passage, they lose certain properties and become fixed. They do not produce any inclusion bodies. They do not infect salivary gland. They do not multiply in extraneural tissue. They multiply rapidly and have a incubation period of only 4 to 6 days. तो वैक्सीनेशन में कौन सा यूज होगा? फिक्स्ड वायरसेस. पैथोजेनेसिस, अब कैसी होती है इन्फेक्शन? डॉगी बाइट कहाँ करेगा? हेड पे कहाँ करेगा? मोस्ट अप्रोचेबल साइट क्या है? फाइन. डॉगी को अप्रोचेबल क्या लगेगा? आप क्या हाथ से पकड़ते हो या पैर मारते हो खींच के डॉगी के? यही होता है ना. तो मोस्ट अप्रोचेबल साइट्स क्या होंगी? दैट आर पर्टिकुलर साइट्स. सो डीप साइट और स्क्रैच फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू एनिमल में लीड टू रेबीज. रेबीज का जो भी है ये याद रखना, इट इज 99% फैटल. अगर वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं दी तो कोई नहीं बचा सकता. सो ओनली ट्रीटमेंट इज वैक्सीनेशन. फाइन. Bats are now the major source in America. Other animals are fox, raccoons, skunks, jackals, mongoose. अब नॉन बाइट एक्सपोजर्स क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट कंटेक्ट विद द सलाइवा. आपके पास डॉगी है, उसका सलाइवा आपके हाथ पे कहीं कट लगा हुआ है, उसने चाट दिया वहां पे. फाइन. देन यू कैन गेट इन्फेक्शन. और इनहेलेशन ऑफ वायरसेस
और कॉर्नियल और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो इन्फेक्शन कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय डॉग बाइट। डॉग ने बाइट करा, मस्कुलर टिश्यू में गया, कनेक्टिव टिश्यू में गया, वहां से इट्स स्प्रेड सेंट्रीपिटली। पहले ये वायरस बाइंड करेगा। अब मसल्स में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। उनका रोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का रोल प्ले करते हैं। अब ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा तो रिसेप्टर्स किस कंडीशन में रहेंगे? टोन्ड अप, रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। Fine. After that, it spreads centripetally to the dorsal root ganglia. Then it reaches to your CNS. Then from CNS it is spread to brain. उसमें eyes, salivary gland, brain वगैरह में जाएगा. Then it spread to skin, corneal tissue. That is centrifugal. Centripetal तो अंदर की तरफ जाना है, centripetal बाहर की तरफ. So first of all, it spreads from lower half of the body to the upper half, and then it spread to the skin. Fine. एग्जाम में अगर आपको स्प्रेड बनाना है, खोपड़ी नहीं बनानी, डॉगी नहीं बनाना, जस्ट राइट अ डॉग, just write a muscle, just write a brain. But you have to draw this diagram when you get your pathogenesis note. Fine. So incubation period is 1 week to 19 years. Incubation period inversely related to the distance from the virus to travel to the site. So अगर पैरों पे बाइट कर रहा है तो और छोटा इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा होगा। जितना ब्रेन के नियर होगा उतना कम उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उतना कम उतना इफेक्ट उतना ही उसमें इंक्यूबेशन पीरियड का वेरिएशन आएगा। So children have shorter than adult, bites on the hand, neck, upper limb, then legs, short people. Fine. और क्या होगा कि incubation period में lacerations हो जाएंगी, even genetic predisposition is there, even a low host immunity can predispose to this. So high dose inoculum of virus and from the site of inoculation to your CNS and virulence all are predisposing factors. अब infection होगी तो क्या क्या stages होंगी? First of all is prodromal, then acute neurological phase, then coma and even death. Prodromal में क्या होगा? प्रोड्रोमल जर्नल आया पेशेंट को, हल्का पानी से डर लगना शुरू होगा। देन वी आर सीएनएस इन्वॉल्व, हाइड्रोफोबिया अच्छा खासा हो जाएगा, इवन माउथ से भी डिस्चार्ज आएगा, एजिटेटेड होगा पेशेंट, सीएनएस इन्वॉल्व हो जाएगा। कोमाटास में यू नो द पेशेंट इज बेडलाइन एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ। डायग्नोसिस, एंटीजन डिटेक्शन फ्रॉम द हेयर फॉलिकल्स एट द नेप ऑफ द नेक and the corneal smear. Virus is isolated in mouse isolation and cell lines. Antibody detection from the serum and the CSF. इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स है? आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चैप्टर हो गया ना बेटा आपका, न्यूट्रलाइजेशन एसेस, यू गाइस आर फेमिलियर। सो ऑल दीज आर न्यूट्रलाइजेशन एसेस, फ्लोरोसेंस इनहिबिशन एसेस एंड देन इज इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट एसे। वायरल आरएनए डीएनए ऑल आर डिटेक्टेड बाय पीसीआर। अगर आरएनए है तो आरटीपीसीआर होगा, डीएनए है तो नॉर्मल पीसीआर होता है। सो इट इज वायरल आरएनए डिटेक्शन इज बाय आरटीपीसीआर एंड मोस्ट कॉमन आपको एग्जाम में एमसी। सो बॉडी में मोस्ट आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है, तो मोस्ट पैथोजेनिक टाइप ऑफ द your what are the cells which you guys are going to see in babies? That is Naegeli bodies. So they are histopathological bindings. अगर मर जाता है डॉगी का ब्रेन का सैंपल लेते हैं, ब्रेन बायोप्सी होती है, then Naegeli bodies are found in that. Fine. So it is post-mortem diagnosis only. So जो बड़े से सेल्स नजर आ रहे हैं आपको, this one, ये सब Naegeli bodies है. Fine. Treatment. There is no specific treatment for the rabies. Symptomatic treatment may prolong the life. Isolation. Patient should be kept in isolated quiet room. क्योंकि वो agitate नहीं करना हमें. जितना agitation करोगे the condition may be worsen of that patient. So patient should be kept in a quiet room, protected as far as possible from the external stimulus, bright light, noise, cold water or air. All these symptoms may precipitate the spasms. क्योंकि आपको पहले ही बताया acetylcholine receptor से bind कर गया तो muscles are already toned up. Fine. Sedatives and anti-anxiety pills, hydration and urination should be properly maintained. Prognosis is very bad. Prevention is by post-exposure therapy and सिर्फ 7 ही पेशेंट्स हैं जो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं. Rest of all the patients are dead if they are not taking the vaccination on time. So WHO ने 2 गाइडलाइंस दी है, एक है आपकी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, एक है प्री एक्सपोजर. दोनों अलग है. पोस्ट एक्सपोजर मतलब बाइट होने के बाद,
प्री एक्सपोजर कौन लेगा? जो डॉगीज घर में रखते हैं या डॉग हैंडलर्स है या वेटरनरी डॉक्टर्स है, ऑल दे गेट अ प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। फाइन। सो दोनों के रेजीम अलग है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों बाद में बातें कर लेना सारे, दोनों में से किसी पे भी नोट आ जाता है आपको एग्जाम में। सो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हैज 3 कंपोनेंट्स। अब किसी ने दंदी काट ही लिया तो क्या करोगे? मैडम निकाल दूं बाहर? इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया है, डोंट वरी। मैं भी आपकी टाइम में से, आपके फेज में से ही गई हूँ, बट आई एम डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो जस्ट लिसन टू इट। हाँ जी, दंदी काट ली तो सबसे पहले क्या करोगे? वूंड केयर, मोस्ट कॉमन। सोप एंड वाटर से पानी के नीचे करके उसको साफ करना, दबाना नहीं है, मुंह में नहीं डालना, कोई ऐसा काम नहीं करना, जस्ट सोप एंड वाटर से रनिंग वाटर के नीचे उसको वॉश करना है। देन इज वैक्सीनेशन एंड देन इज इम्यूनोग्लोबुलिन। अकेली वैक्सीन का भी कोई रोल नहीं, अकेली इम्यूनोग्लोबुलिन का भी कोई रोल नहीं, ये दोनों साथ में देने पड़ेंगे। फाइन। सो रिस्क कैटेगराइज करा है WHO ने, तो 3 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 क्या है? शर्म नहीं आई अभी भी? निकाल के फेंको, चलो तीनों बाहर, आउट। उठो मैम, उठो, हो गया, 3 बार बोल चुकी हूँ, चलो तीनों बाहर, सामान उठाओ, निकलो बाहर। आप लोगों को पढ़ाई से ज्यादा बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 महीने बाद पेपर आप लोगों को मैटर नहीं करता वो, सो लीव, लेट मी ओपन द गेट फॉर यू गाइस। यू डिड अ वेरी गुड जॉब, और लीव माय रूम, चलो बाहर। जब सॉरी होगी तो सॉरी बोलो मत। आप लोगों के लिए आती हूँ, अपने लिए नहीं आती हूँ। 10 काम छोड़ के आई हूँ, 100 पेशेंट की रिपोर्टिंग पेंडिंग है, ओनली फॉर यू गाइस, सो लिसन टू मी। अब और किसको जाना बाहर? तो कैटेगरी 1 का क्या मतलब है? आप डॉगी को आपने टच करा, डॉगी को खाना दिया आपने, एंड देयर इज अ लिक ऑन द इंटेक्ट स्किन, so chances are very less, so no treatment is required until unless there is a history of history. अगर पेशेंट डॉगी की पहले भी बाइट करने की हिस्ट्री आपके पास है, then you have to wait, otherwise no treatment is required. Category 2, that is your minor scratches or abrasions without bleeding or nibbling on the uncovered skin. मतलब हाथों पैरों में छोटे छोटे abrasions हैं, तो वूंड को मैनेज करो, रेबीज वैक्सीन दो और वेट करो 10 दिन के लिए। डॉगी को आइसोलेट करो, देन सी फॉर द सिम्टम्स ऑफ द डॉग। डॉग एजिटेट तो नहीं हो रहा, डॉग बाइट तो नहीं कर रहा, डॉग रेस्टलेस तो नहीं, 10 दिन के लिए ऑब्जर्व करो। इफ द डॉग इज हैविंग एनी ऑफ द सिम्टम्स, देन वी कैन ट्रीट लाइक फाइन। कैटेगरी 3, दैट इज योर मेजर रिस्क। देयर इज अ सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट, डॉगी ने बहुत जगह बाइट कर लिया है, इवन अ ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड, और देयर आर लिक ऑन द ब्रोकन स्किन or direct contact with the bats and wild animals. So wound management, immunoglobulin, vaccination, and even observe the dog for the 10 days. So physical cleaning, that is chemical inactivation by antisepsis, and then suturing avoid करनी है, suture नहीं करना है, fine? क्यों? अब एक्सपोज है, उसका सलाइवा लीक हो चुका है, तो जो बाकी चीजें हैं, वायरस तो गया ही है, इवन द वुंड इज कंटामिनेटेड विद, डॉग के माउथ में भी बहुत कुछ होगा, so you need not to suture that, open रखना है उस wound को, just clean and your antisepsis should be done, that's it. Debridement of devitalization tissue, tetanus prophylaxis, antibiotics for treatment of the secondary bacterial infection. Do not touch the wound with the bare hand, do not apply irritant, तेल मिट्टी ये वो कुछ नहीं लगाना, चौक जो पुराने जमाने में कहते थे बीटल, जाना तुम दोनों को भी बाहर, बीटल लीव्स लगा दो, तेल लगा लो, मिट्टी लगा लो, उससे कुछ नहीं होगा, don't do that, it will add to the secondary bacterial infections. So what is the vaccination? Purified chick vaccine, purified vero cell lines and human diploid cell vaccines. रूट क्या है? जो भी वैक्सीन लगेंगी either it is intradermal or intramuscular. साइड क्या है? deltoid. Deltoid of the arm for the adults and anterolateral aspect of the thigh in children. Never administered in a gluteal region. Gluteal region में क्यों नहीं लगाते? मसल मास ही इतना वही रह जाएगी, अंदर स्प्रेड नहीं होगी, अपन को ब्रेन तक ट्रांसमिट करवानी है पूरी बॉडी में, फाइन। सो डोज शुड बी 0.1 ml फॉर द वैक्सीन फॉर इंट्राडर्मल एंड 1 ml फॉर IM. सो इंट्राडर्मल शेड्यूल है 2-2-2, इसका मतलब 2 साइड्स 0-3-7 days, 2 जगह पे बॉडी में 0 दिन सेशन बाइट करा, तीसरे दिन एंड 7वें दिन हम वैक्सीन देंगे।
दैट इज इंट्राडर्मल। IM वैक्सीनेशन की 4 डोजेस लगेंगी। फर्स्ट इज जिस साइट पे उसने बाइंड करा है वहां बाइट करा है वहां साइट 1 पे 037 एंड फोर्थ इज 14 to 28 डेज के बीच में, या 2 साइट मैनेजमेंट कर लो, 0 and 1 डे पे करेंगे, 0, 7, 21 डेज पे। फाइन। चेंज इन द वैक्सीन प्रोडक्ट्स और द रूट ड्यूरिंग द इज एक्सेप्टेबल इफ कोशिश करो जो ब्रांड की पहले लगवाई है दैट वैक्सीन शुड बी कंटिन्यूड। अगर कोई चॉइस नहीं है, मिल नहीं रही कंपनी से, देन वी कैन गो थ्रू। इफ डिलेड, इफ अ वैक्सीन डोज इज डिलेड फॉर एनी रीजन, बाकी उसको रीस्टार्ट नहीं करना है, नेक्स्ट डोज वैसे ही कंटिन्यू कर लो। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी 2 तरह के आते हैं, एक तो ह्यूमन है, एक एक्वाइन है। एक्वाइन मतलब हॉर्स से बने हुए हैं। फाइन। तो डोजेज भी वैसे ही है, ह्यूमन की डोज 20 इंटरनेशनल यूनिट है और डॉग की 40 एज पर बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट। फाइन। एडमिनिस्ट्रेशन इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे देंगे? जहां बाइट करा है उस साइड पे दोगे, आगे पीछे करके सारा जो बच गया उसको साइड पे रख दो, कोई और पेशेंट आ गया तो दे देना, नहीं तो डिस्कार्ड कर दो। उसी एरिया में देनी है आपको, डीप सुपरफिशियल जहां भी आपको लग रहा है जहां अच्छा खासा बाइट हुआ, देन यू हैव टू एडमिनिस्टर दैट पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब पोस्ट the individuals who are previously vaccinated, they are one site intradermal is given for 0 and 3 days, one site IM or 0 to 3 days, or 4 sites we can give on 0 day. So pre exposure में क्या आएगा, कौन कौन से पॉपुलेशन आएंगी? हायर ऑक्यूपेशनल रिस्क, लाइकवाइज वेटरनियंस। नेक्स्ट इज योर सब पॉपुलेशन इन रिमोट एंडेमिक एरियाज, जहाँ डॉगी पालते हैं, घर पे रखते हैं ना डॉगी बेचने के लिए, घर पे ब्रीड करते हैं, रखते हैं, आगे पालते हैं, तो वो लोग भी दे आर रिस्क टू दैट। सो इसमें 2 साइट इंटरडर्मल इंजेक्शन है 0 and 7 डे पे, एंड 1 साइट IM इंफेक्शन है 0 to 7 डेज पे। बूस्टर की जरूरत नहीं है, दे प्रोवाइड अ लाइफ टाइम प्रोटेक्शन एंड फॉलोइंग एक्सपोजर है तो दोबारा एक्सपोजर एंड एक्सोलेटेड वैक्सीन रेजिम इज इंडिकेटेड। अब एपिडेमियोलॉजिकल क्या है? इट इज मोर कॉमन इन एंजाइटिक एंड एपिजोनोटिक डिजीज ऑफ बोथ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। एज है, मोस्टली चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। डॉग्स में क्या होगा? डॉग्स में भी तो रेबीज होगी, तभी अपन में हो रही है। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 8 वीक। डॉग में 2 चीजें होती है, फ्यूरियस रेबीज, मैड डॉग सिंड्रोम, मतलब कुत्ता जाएगा वहां भागेगा, सबको काटता फिरेगा जो रास्ते में मिल गया। फाइन। डम्ब और पैरालिटिक रेबीज, मतलब उस स्टेज पे चला गया दैट द डॉग इज वेरी लेथार्जी एंड इज अबाउट टू डाई, दैट इज द सेकंड स्टेज। Control of rabies, most logical and cost-effective approach of the urban rabies is elimination of stray dogs and mass immunization. हाँ जी, एंटी रेबीज वैक्सीन किससे बनेगी? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ केस ऑफ क्लास 3 डॉग बाइट कौन सी चीज नहीं देंगे हम? स्टिच नहीं करेंगे हम वूंड को। ऑल द फॉलोइंग वैक्सीन आर कमर्शियली अवेलेबल एक्सेप्ट रिकॉम्बिनेंट ग्लाइकोप्रोटीन। नाइग्री बॉडीज रेबीज में आएंगी। इज दैट क्लियर? बेटा ये टॉपिक पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेट है। जहां मर्जी लिख लो, आप लोगों को लगता है कि नहीं आएगा टॉपिक इस क्वेश्चन से तो जैसे